Hello and welcome. Let's start with our lead story this morning, the controversy that's growing over India versus Bharat and the speculation on whether the country's official name will be changed from India to Bharat. Now, this started after a shift from India to Bharat on President Droupadi Murmu's G20 invitations to foreign leaders yesterday. Now, official invites to heads of state for a dinner on September 9th in the national capital came from the President of Bharat instead of the traditional President of India, as you can see in that picture that we're showing you. Now, in fact, this is not the only time when President of Bharat or the word Bharat has been used officially. Bharat was also used in the official documents for the ASEAN and the BRICS Summit too. Those documents referred to Prime Minister Modi as the Prime Minister of Bharat. Now, this has given rise to speculation that the government might change the name or the official name of the country in the Parliament in the 5-day special session that has been called from September 18th to 22nd. Remember that in the Constitution, it is currently India, that is Bharat, and all constitutional positions like that of the President has the word India and not Bharat. So we'll wait to see whether that is changed. But the opposition says that this change has been made because the BJP is rattled by the India alliance, the opposition alliance that is named India. While the BJP says that this is a proud and happy moment to do away with the British legacy. Let's take a look at some of the reactions coming in. देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। इंडिया नामटा नामे सारा विश्व चेने, हठाৎ एमन की हलो आज के देशेर नामटाও चेंज हो जावे। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? If you want to start calling India as Bharat, have you consulted with the states? Have you discussed it in Parliament? जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। While this is the latest controversy over India versus Bharat, we'll wait to see whether this is an official change that's made in the special session of the Parliament that has been called on September 18th. Though till now, there's no official confirmation from the government on what the agenda for the special session of the Parliament is. My colleague Sunil Prabhu gets us more details. Well, officially, we haven't yet been told about the, the agenda. Neither does anybody in the government have a clue. It's except that it says government business from the 18th to the 22nd. There will be no question hour. There will be no 0 hour. There will be no special mentions. So what exactly is and that is what prompted the India Alliance yesterday to ask the Congress president, the chairperson of the Congress Parliamentary Party, Sonia Gandhi, to write a letter to the Prime Minister listing out a host of issues that they would like to discuss on the floor of the House. Unemployment, the price rise, Manipur, apart from a host of other issues. But whether India or Bharat, those are matters of detail. We'll have to wait and see because as you are well aware, Article 370 came in at the last minute on the 5th of August when they brought it into Parliament. This time round, the opposition members don't want any surprises of a last minute. You need to build a political consensus, a constitutional amendment, and anything that you want to do. If you want to change it from, India, that is Bharat, as it's known in Article 1, you want to rename India to Bharat, then you need to have, as has been pointed out by various top politicians and across the political spectrum, a proper discussion on the floor of the House, as well as, a broad political consensus to really get things in perspective. But having said that, we must remember that the G20 dinner invite is not the first of President of Bharat. Apparently, even for the Prime Minister's visit, which has been just now used for the ASEAN Summit that is at present in Jakarta,
as well as, of course, for the Greece, as well as his South Africa visit. Republic of Bharat was used, but it just didn't get noticed. So it's in that backdrop that this and in the run-up to the G20, as the Ministry of External Affairs, quoting sources, said, you will please bear in mind that there will be more Bharat being used. That is clearly a decision, a political decision to make the word Bharat more pronounced than India. Well, India versus Bharat is the new controversy. The other controversy dividing the opposition and the government, and even showing some divides within the Congress party, within the India alliance, is the controversy over the Tamil Nadu minister Udayanidhi Stalin's comment calling for the eradication of the Sanatan Dharma. Now, he is still defiant over that comment. And he said that the central government not inviting President Droupadi Murmu for the inauguration of the new parliament is an example of the Sanatan caste discrimination. He has said that I've called for the eradication of the Sanatan Dharma and not Hinduism because Sanatan Dharma promotes discrimination. And Udayanidhi Stalin also repeated that he was ready to face any legal action for his comments amid reports that attempts are being made to get the Tamil Nadu governor's sanction to initiate action against him. This is what he told NDTV's Sam Daniel. Mr. Subramanian Swamy has said he has written to the governor asking for sanctions for action against you. Okay. Or how do you respond to that? I haven't heard anything about it. I from the day one I have been telling, if you want to take legal action on me, I'm ready to face it, anything. Whatever I said here, I'll say it in the court also. Right. Thank you. You have clarified your comments were not against Hindu religion but against the Sanatana practices, what we call as caste discrimination. Yeah. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? For example, the Honorable President Droupadi Murmu Madam, she was not invited for the opening of the Parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody's apology to me? They're demanding your apology. No, sorry. I can. This is not an apology to them. This is for your question. Thank you so much. And that was Mr. Udayanidhi Stalin, the Tamil Nadu sports minister, talking to us at the Chennai airport with Suresh. Sam Daniel for NDTV. And meanwhile, ahead of the big G20 meeting this weekend that Delhi will host, Prime Minister Narendra Modi is headed to Jakarta in Indonesia for the ASEAN Summit. This is the Association of Southeast Asian Nations Summit. The Prime Minister will seek to strengthen ties with the ASEAN nations, Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei, that are often engaged in territorial standoffs with China in the South China Sea. A busy week for the Prime Minister, who's set to travel first to Indonesia for the India-ASEAN Summit and the East Asia Summit before he returns 24 hours later for the G20 Summit and bilateral meetings with the world's top leaders. Mr. Modi, who's been invited by Indonesia's President Joko Widodo, will be in Indonesia on the 6th and 7th and focus on building ties with the ASEAN bloc. India-ASEAN ties are already at the comprehensive strategic partnership level. The India-ASEAN Summit will review progress of ties and chart a future direction of cooperation. The East Asia Summit will see India and 8 dialogue partners exchange views on regional and global issues. At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, Prime Minister will visit Jakarta for the 20th ASEAN-India Summit and the 18th East Asia Summit, scheduled for the 7th of September. Both the summits had been kept for the 7th so as to facilitate Prime Minister coming back early. The Indonesian side was kind enough to advance the East Asia Summit timing a little bit so that Prime Minister could come back early. Significantly, China's President Xi Jinping will not be attending the meet. Beijing will be represented by Chinese Premier Li Qiang. President Xi will also be absent for the G20 summit in Delhi. Vishnu Shom for NDTV. Moving on, in yet another case of lack of road access, a pregnant tribal woman from the Bhodana Dilli Gram Panchayat in Telangana had to be carried some 20 kilometers in a makeshift dolly by 2 men
crossing streams, reaching the primary health center. As you can see in those visuals, the pregnant woman having high blood pressure was then shifted to an ambulance where she gave birth. Thankfully, the baby and the mother are okay. My colleague Uma Sudhir joining us for more details on this. And this is a shocking case, Uma. It's extremely unfortunate that because of lack of access, this is the arrangement that had to be made for a basic essential, carrying a pregnant woman to the hospital. Yes, indeed. Telangana prides itself on, in fact, having 100% institutional delivery, which means all the pregnant women in Telangana are supposed to give birth only in an institution and not on the road or at home or anywhere else. And in this case as well, it's the last mile that seems to be the big challenge, because to the credit of Telangana, they do have a good network of primary health centers and government hospitals across the state. But in this particular one, for instance, from the tribal agency area of Bhadradri Kottagudem, and no road access, and therefore it was a cot that had to be modeled into some kind of a dolly where the men are carrying the woman using a wooden pole, and you can see nylon strings to which she has been tied, and then she's carried across the stream and brought 20 kilometers away to Satyanarayanapuram PHC, from where she once again had to be shifted in a 108 ambulance to the Bhadrachalam area hospital. Just last week, in fact on August 25, we had reported about another case that happened in Nirmal district of Telangana, where once again the last mile access was not there, and they had to carry her across a stream at that time. The mother in that case gave birth right on the road. In fact, she was on the road for 4 hours, because in that case there is also a report that the ambulance had run out of fuel, and therefore they had to wait for a second ambulance to come and pick her up and shift her to a hospital. So while Telangana is priding itself on its maternal mortality rate and infant mortality rate becoming much better in the last few years, which is factually also given by the NFSH, but the National Family Health Survey, but this last mile connectivity could prove to be a big challenge, and that's where these women are suffering. Very often the arrangement is that if they are in very remote areas, then the woman is shifted a little in advance so that whenever she goes into labor, the delivery can happen in an institution. Last time they told us that she had come into labor 1 month earlier, and that's why it couldn't happen. In this particular case, I've not yet been able to speak to the authorities to know why she was not shifted earlier if she is living in an area that does not have road access and no ambulance to reach her. Uma Sudhir, thanks very much for joining us. Unfortunate story, but thankfully the woman and the child, the baby, are both safe. We'll take a short break now, and we also have good news to share with all our viewers. NDTV has launched its regional channel, NDTV Rajasthan. The channel is currently on air. Please make sure to check it out. NDTV भारत की तरफ से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसे वाला नेटवर्क है। पिछले हफ्ते हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लॉन्च किया, और उसके बाद राजस्थान। आने वाले दिनों में हमारा विस्तार यूं ही जारी रहेगा। एनडीटीवी के बारे में इतना कहूँगा कि राजस्थान से लॉन्च हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले सामाजिक सरोकार को सामने रख करके आप लोग परफॉर्म करेंगे। एनडीटीवी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपकी व्यूअरशिप जो है अंधाधुन बढ़े। एनडीटीवी राजस्थान को आयुष्मान भव। थैंक यू। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। And I'm very happy to be able to be here to congratulate NDTV on the appearance of the new channel. आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अब जो है वो आप लोगों ने प्रवेश किया। न्यूज चारों तरफ से आए, खुशबू यहाँ की आए, देन हमको लगता है हमारी चैनल। एनडीटीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एनडीटीवी राजस्थान के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से Welcome back. Our focus remains on the big G20 meeting that India is going to host this weekend. And while we focus on the important discussions that will be held here in the national capital, let's also take a look at the preparations that are being made by Delhi to host the top global leaders. Well, the Delhi police is on high alert ahead of the G20 Summit, where several VVIPs, including heads of states, will be in attendance. My colleague Mukesh Singh Sengar spoke to the Delhi Special CP Law and Order Dipendra Pathak about the security arrangements made. Listen in. किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं इस G20 को लेकर? तो सबसे पहले तो इंटायर सर्कमस्टेंसेस का
समग्र आकलन दिल्ली पुलिस करके मल्टी लेयर्ड, मल्टी प्रोंग्ड हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का इंतज़ाम हमने किया है। अगर इसको हम चाहे वो बॉर्डर पे चेकिंग हो, चाहे इंटरनल पिकेट्स की चेकिंग हो, पेट्रोलिंग हो, बेहतर विजिबिलिटी हो, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो एक मजबूत, एक सफिशिएंट, एक स्ट्रैटेजिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और रहेगा, और एक स्ट्रैटेजिक और एक स्मार्ट अंदाज में, तो वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे वो धरना प्रोटेस्ट के हिसाब से वैसे लोकेशंस और वैसा सस्पेक्टेड जो ये पॉसिबल प्लेसेस हों वो हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, चाहे चूँकि ये G20 जिन देशों में कहीं हुआ है तो बहुत जगह डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट हुए हैं जो नेशनल एलिमेंट्स का भी बियरिंग रहा है। तो यहाँ भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स एंड नेशनल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई किसी तरह का धरना, प्रोटेस्ट, स्लोगनरिंग, कोई इस तरह का प्लेकार्ड, तमाम चीज़ें की पॉसिबिलिटी है तो उसको भी कैसे कंटेन करेंगे, एक संवाद की स्थिति बना के रखते हुए, और साथ ही अगर ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में चीज़ों को कैसे हम कंटेन कर पाएँ। अपने कम्युनिकेशन के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद? देखिए, मेक इन इंडिया, भारत हर जिस फील्ड में अच्छा करे, सॉल्यूशन दे, टेक्निकल सॉल्यूशन दे, अच्छा है, उसको यूज़ करना चाहिए। And one important leader who's going to be here in the national capital for the G20 Summit is the US President Joe Biden. Well, there were some speculations on whether Joe Biden's plans to travel to Delhi will change, considering that the First Lady of the United States, Jill Biden, tested positive for COVID-19. But the speculations have been put to rest. The White House has confirmed that there's no change to the US President Joe Biden's upcoming travel to Asia for the G20 Summit in Delhi, followed by a visit to Vietnam, despite the First Lady Jill Biden's positive COVID test. Now, the White House has confirmed that President Biden's plans remain unchanged because he has tested negative for COVID-19 twice and he is not experiencing any symptoms. Listen in. There's no updates to his schedule. That's where we are right now. He tested negative last night. He tested negative today. That's what matters. He's not having any symptoms. The President will travel to New Delhi, India to attend the G20 Leaders Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the President will participate in the official sessions of the G20 Summit. Now let's shift our focus to ethnic violence hit Manipur. Today, there will not be any relaxation in the curfew in the valley region of the state that's dominated by the Methi community. This after a prominent civil society group, which is the Coordinating Committee on Manipur Integrity, had called for protest march till the Kuki-Zomi tribe-dominated Churachandpur. Now, the state government has appealed to the community not to take out this protest march, and security in the Churachandpur border areas have also been intensified. Disturbance to the law and order at the district borders will be taken care. Adequate forces have been deployed, including the district police, the CRPF, the BSF, the ITBP, RAF, Army and Assam Rifle teams. We are coordinating with our neighboring districts, Kakching and Bishnupur, and also with the forces deployed on the other sides. We are regularly having meetings so that any kind of mobilization either from Churachandpur or either from Bishnupur would be taken care, and the masses will not come close at the border areas. And finally, here's a band, Baja Bharat, that you might have never seen before, and that truly showcases India's unity in diversity. Doing it different is the mantra for this couple from West Godavari, who are riding the lanes in a vehicle led by girls in a sari on bikes and Kerala Drum Orchestra leading the way. The couple Suresh and Ranganayaki had flavors of Kerala and a Punjabi band, Baja and Bharat, with women draped in Maharashtrian style sari, all coming together for this, showcasing India's diversity. This happened in Dr. B.R. Ambedkar district of Andhra Pradesh.
On that note, we'll take a short break, but we have great news to share with all our viewers. NDTV has launched its regional channel, NDTV Rajasthan. The channel has been launched yesterday and it's currently on air. Please make sure to check it out. And on the other side, we'll get you some glimpses of the grand launch event that hosted the Chief Minister, Ashok Gehlot, as well. Stay tuned. NDTV के रीजनल चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और आपके माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को खबरों का वाहक बनकर आप तुरंत ही खबरें पहुंचाने का काम करेंगे। NDTV पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। ये बात राजस्थान और राजस्थानियों की है, भरोसे की, उसी विरासत के साथ। आइए बुलाते हैं अपने एडिटर इन चीफ संजय पगोलिया को स्टेज पर। आइए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित करेंगे। आइए। NDTV राजस्थान, अब राजस्थान की धरती से। आई एम श्योर कि आपने अपने इंटरनल सर्वे फीडबैक सब कुछ कराया होगा और एक वो फलोदी का भी एक बैरोमीटर होता है सट्टा बाजार वाला, तो उसकी भी कुछ खबर होगी आपके पास। तो अगर आप ये बता सकें कि कितनी सीटों का अनुमान है? मिशन 156 मतलब हमारा टारगेट 156 है। वही टारगेट था जो 98 में मैं मुख्यमंत्री बना, तब हम लोग 156 जीत के आए थे। एक मेरा सुझाव है 157 या 155 बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 56 पर किसी और का कॉपीराइट है। ये जो कहा आपने कि सरकार जहां ये जीतती है बीजेपी, वहां तो मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह जरूर बनाते हैं, जहां हारती है वहां जरूर बनाते हैं, मतलब वहां तो पक्का ही बनाते हैं जहां हार जाते हैं। यहां पहली बार हुआ कि राजस्थान में ये प्लान बीजेपी का फेल हो गया। इसका रिटेलिएशन तो होगा, आपसे इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि आपने इनकी योजना फ्लॉप कर दी। उनको मालूम होना चाहिए कि पाला किसे पड़ रहा है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं ही पार्टी चलाता हूं। वो तो कहते हैं कि चेहरा वही है, अशोक गहलोत ही चेहरा है, तो आपका चेहरा कौन होगा, ये भी तो लोग पूछ रहे हैं। हमारा चेहरा कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी जी हैं। And I'm very happy to be able to be here to congratulate NDTV on the appearance of the new channel. चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। चेहरे ही मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। अंदर का राम जला दिया, कैसे उल्टे पड़े दशहरे हैं। अपनी ही आवाज़ सुन ना पाए, हम पूर्ण रूप से बहरे हैं। मन की नदी उफान पा ना सकी, हम दिखते कितने गहरे हैं। ये मुखौटे कोई उतार ना ले, लगा दिए लाखों पहरे हैं। चेहरे मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। सर आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपके पैर की चोट के बावजूद आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, और आज भी आपका जो समय मिला मुश्किल से मिला। आपके बारे में बस एक ही बात कहनी है कि मुख्यमंत्री तो बहुत होते हैं और वरिष्ठ मुख्यमंत्री भी बहुत होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो बियॉन्ड मुख्यमंत्रित्व चले जाएं और राष्ट्रीय नेता हो जाएं, पावर में रहें या न रहें। तो उसमें मैं दो नाम का जिक्र करके अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। भैरव सिंह शेखावत या शरद पवार या अब गहलोत साहब बियॉन्ड उस पार्टीजन पॉलिटिक्स के चले गए हैं कि कोई भी वक्त आए जाए, लेकिन गहलोत साहब इस वक्त देश के एक बड़े लोकप्रिय और राष्ट्रीय नेता हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अब चुनाव की जंग में हैं आप, और यहाँ पर एक कहावत है कि रिवॉल्विंग डोर बारी बारी से बदलते रहते हैं। ऐसे में आपने एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव खड़ा किया है पिछले वर्षों में, जो सबको दिख रहा है। तो मैं स्पेसिफिक सवालों पर चलूं उसके पहले एक आपका ओपनिंग रिमार्क आपके बारे में, एनडीटीवी के बारे में और आपकी उपलब्धियों के बारे में। एनडीटीवी के बारे में इतना कहूँगा कि राजस्थान से लॉन्च हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले सामाजिक सरोकार को सामने रख करके आप लोग परफॉर्म करेंगे, उसमें सब बातें रहती है। दूसरा जो है, आपने भैरव सिंह शेखावत साहब का नाम लिया, तो मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था
वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि मैं जीते जी कभी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा। मैंने जवाब दिया, भैरव सिंह जी, आपके जीते जी कांग्रेस सरकार बनाएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमारी सरकार को देखें। संयोग से 6 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने असेंबली में उनको याद दिलाया। तो आप सोच सकते हैं कि शुरुआत मेरी वैसे हुई। बाकी जो राजस्थान के बारे में मैं तय करना चाहूँगा कि राजस्थान बदल रहा नहीं, बदल गया काफ़ी हद तक। पहले राजस्थान का मतलब रेगिस्तान है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पानी की समस्या भयंकर है, पिछड़ा हुआ राजस्थान है, ये इमेज बनी हुई थी राजस्थान की। आज वो स्थिति नहीं है। जिस रूप में हमने फैसले किए हैं वो बेमिसाल है। इतना कह सकता हूँ, राजस्थान आज चर्चा के अंदर, पहले नहीं हुआ करता था। मेरा भी 50 साल का अनुभव है। 42 साल तो मुझे हो गए जब मैं पार्लियामेंट में प्रवेश किया था। तो पहले कोई चर्चा खाली, मैंने कहा, अकाल सूखा, बेरोजगारी, पिछड़ापन उसी में होती थी। आज हर राज्य में चर्चा हो रही, केंद्र में चर्चा हो रही, राजस्थान की सीमाओं की हो रही। आप सोच सकते हो कि कुछ तो किया होगा कि आज चर्चा में प्रदेश आ गया देश के अंदर। ऐसे काम भी हमने किए हैं जो कि शायद और जगह नहीं है। जैसे राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, मेरी ख्याल से ये एक्ट कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कर दिया पब्लिक का। शिक्षा के अंदर पहले हमारे यहाँ के छात्र जाते थे पढ़ने के लिए पूना या कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। आज 25 साल पहले हमने फैसला किया, उसका असर आज भी है। अब नहीं जाते, अब तो एजुकेशन हब यहाँ बन गया। नंबर 2, IIT, IIM, IIIT के साथ एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आर्य यूनिवर्सिटी, सारे तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, बल्कि जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमने खोली है। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में हमने एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, और पानी और बिजली तो खैर प्रायोरिटी है ही है। विंड के अंदर, सोलर के अंदर में नंबर 1 है देश के अंदर। IT में नंबर 1 हम देश के अंदर। सोशल सिक्योरिटी में 1000 रुपये तो पर मिनिमम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी के वक्त में 4 कानून पास हुए थे आज़ादी के बाद पहली बार। जनता को अधिकार देके शुरुआत की गई थी, अधिकार आदेश युग की। RTI एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। मैंने कहा 5वां कानून बनाओ आप, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि आप दुनिया में जाते हो, मुल्कों में देखते हैं, सब जगह सोशल सिक्योरिटी होती है हर परिवार को। यहाँ हर देशवासी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस प्रकार की योजनाएं आपने लागू की हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अब एक तरीके से नॉर्मलाइज हो गया और आपने उस पर एग्रेसिवली काम किया है। इसीलिए जाहिर है कि बीजेपी वाले अब आप पर तोहमत लगाते हैं कि आपने उनकी प्लेबुक को हाईजैक कर लिया, उनकी स्ट्रेटजी को आपने पकड़ लिया। उस पर आने के पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो जो आपने गिग वर्कर्स के लिए किया है, ये जो डिलीवरी बॉयज़ और इन लोगों के लिए, उसके पीछे क्या थॉट था? क्योंकि एक वक्त की ज़रूरत थी। अभी राहुल गांधी यात्रा चली थी, भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में जब गए हम लोग, तो वहाँ रोज़ वो हमेशा दोपहर को इंटरेक्शन करते थे विभिन्न वर्गों से। एक दिन जो डेलीगेशन आया हुआ था गिग वर्कर्स का था, एक्टिविस्ट साथ में थे उनके, विच निखिल डे वगैरह साथ थे। बातचीत करी तो उनकी जो मूल समस्या समझ में आई राहुल जी को भी। उसी दिन तय हो गया हम लोग कानून बनाएंगे, राजस्थान पहल करेगा। आज मैंने अभी मिस्टर मैथ्यू कोई है संपादक या कोई आर्टिकल लिखा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उन्होंने इतनी तारीफ करी इस एक्ट की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। मतलब एक नई शुरुआत जो राजस्थान करी, राजस्थान कोट किया उन्होंने। ऐसे कानून दुनिया भर के मुल्कों में बनना चाहिए, क्योंकि आज 15-20 साल
में ये जो डेवलप हुआ है, उबर, ओला और जो जोमेटो, जो कुछ भी नई पहल हुई है, तो समय आ गया उन लोगों की सिक्योरिटी में रहे, सिक्योरिटी मिले उनको। तो हमारे हर काम की आज मैं समझता हूँ कि चाहे वो गिग वर्कर्स एक्ट हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हो, राइट टू हेल्थ हो, किसानों के लिए जो ज़मीन कुड़क हो जाती है उस पर रोक लगाने की एक्ट हो, बल्कि जो आजकल पर्चे लीक बहुत होते हैं एग्जाम के, हर राज्य में प्रॉब्लम हो गई है। आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो गया हाई कोर्ट के अंदर, तो हमने वो कानून बनाया कि आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसे लोगों को। मुख्यमंत्री जी, अभी मेरे मुंह से निकल गया कि चुनाव की तैयारी है, लेकिन अभी एक नया सवाल खड़ा हो गया, चुनाव हैं कब? और चुनाव लोकसभा और विधानसभा के अगर साथ हों तो विधानसभा के चुनाव देर से होंगे या लोकसभा का चुनाव पहले होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक प्रस्ताव आया है उस पर आपकी राय? देखिए, आज जो कुछ देश में हो रहा है, मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ये मेरा मानना है। ये उसी का नमूना है। ये काम भी आप जो है विपक्ष की पार्टियों को साथ लेके बातचीत करके कर सकते थे। और एक और बात है, राष्ट्रपति का पद इतना गरिमा वाला पद है, जो राष्ट्रपति पद समाप्त होता है 5 साल बाद में, उसके बाद में कोई, मैंने सुना नहीं कभी कोई राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हो। कमेटी का अध्यक्ष बनेंगे तो उस कमेटी की आलोचना भी होगी, तारीफ भी होगी। अनावश्यक आपने राष्ट्रपति महोदय को उसके अंदर बना दिया और विपक्ष की पार्टियों को आपने अगर साथ लेते अलग बात थी, वरना आपकी नीयत पर शक हो रहा है कि क्यों आपने किया। नंबर 1। नंबर 2, इससे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, कोई बात नहीं, अधिकार है उनका, स्पेशल सेशन है। अभी तक आप देश को बता नहीं रहे हो क्यों बुलाया गया है। ये डेमोक्रेसी में बातें अच्छी नहीं है। आपका अंदाज क्या है, क्यों बुलाया है? ये रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य है। आपकी आलोचना ये है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना था, बात करना था। मान लीजिए वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मूल रूप से इस आइडिया पर आपको क्या कहना है कि सारे चुनाव एक वक्त पर होने चाहिए? ये देखिए, ये नई बात नहीं है। 67 तक चुनाव साथ होते थे, उसके बाद में अलग अलग होने लगे कई कारणों से। पार्लियामेंट भंग भी हुई एक बार, राज्यों में सीटें बन गई कई बार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कई बार अपनी राय दी है, लॉ कमीशन राय दी थी कई बार, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई राय दी है, कई बार दी है। तो कोई नई बात नहीं है, ये बहस चली है, राष्ट्रीय बहस चलेगी, इसके ऊपर वेलकम करेंगे सभी लोग। उसके बाद में जब स्टेक होल्डर सब इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद में कोई फैसला करें हम लोग, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरा मानना है कि इसमें जल्दबाजी करके उसकी जरूरत नहीं थी। मेरिट डीमेरिट की बात तो अलग है। आप डेमोक्रेसी में विपक्ष को सम्मान नहीं दे रहे हो, इससे डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जी, आपको राजस्थान के संदर्भ में कैसा क्या सूट करता है कि ये चुनाव असेंबली के अलग हों या लोकसभा के साथ हों? क्योंकि कहते हैं कि लोकसभा के साथ होने का मतलब ये है कि पीएम मोदी का एक प्रीमियम वोट है, वो वोट माहौल बदल देता है। राज्य में अगर बीजेपी कमजोर भी है तो मोदी प्रीमियम के कारण मजबूत हो जाती है। राजस्थान में वो स्थितियाँ अलग बन चुकी है। अब यहाँ वैसे तो माई बाप जनता ही होती है, किसी को सत्ता सौंपें। तो मेरा मानना इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हुई अभी तक भी सरकार के खिलाफ में, गुड गवर्नेंस हुई है। पब्लिक का मूड लगता है, मुझे एहसास होता है इस बार रिपीट करने का है। अब इसमें मोदी जी चाहे कितनी गणित गुणा भाग करे, चलने वाला नहीं है। पब्लिक का मूड सिर्फ आप अपनी फीलिंग के आधार पर नहीं कह रहे होंगे। आई एम श्योर कि आपने अपने इंटरनल सर्वे, फीडबैक सब कुछ कराया होगा। और एक वो फलोदी का भी एक बैरोमीटर होता है, सट्टा बाजार वाला, तो उसकी भी कुछ खबर होगी आपके पास। तो अगर आप ये बता सकें कि कितनी सीटों का अनुमान है और लोग आपको क्यों वोट देंगे? दो बातें हैं। देखिए, एक तो मैंने कहा मिशन 156, मिशन 156 मतलब हमारा टारगेट 156 है। वही टारगेट था जो 98 में मैं मुख्यमंत्री बना
तब हम लोग 156 जीत के आए थे। नंबर 1 भैरव इंडिया आ गए थे 32 पर, हम लोग आए थे 156 पर आए थे। जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, उस जमाने की बात है, वैसे माहौल था, वैसे हमें पूरा कैंपेन हुआ AICC द्वारा। इसमें एक मेरा सुझाव है, 157 या 155 बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 56 पर किसी और का कॉपीराइट है। ठीक है, देखिए उनकी जो कमेंट था उनको याद रहना भी जरूरी है। जो पब्लिक को जो 56 के सीने की बात की थी ना, उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है 56 का सीना भी याद रहना जरूरी है। कुछ समझ सीना गया कहाँ पर, ढूंढ रहे हैं हम लोग उसको, उस हिसाब से जरूरी है कि 56 रखें उसको। ढूंढ रहे हैं तो अभी तो बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में एक प्रश्न है और आमतौर पर ये पार्टी अपना तय करती है कि किसी भी राज्य में रणनीति क्या हो, कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पहले बताएं न बताएं वगैरह वगैरह। जाहिर है कि राजस्थान का चुनाव शुद्ध रूप से मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, तो 56 इंच विल बी बैक। चलने वाले नहीं, इस बार चलने वाले नहीं, क्योंकि पब्लिक जानती है कि मोदी जी चुनाव के बाद में ना तो स्कूल खोलने वाले हैं, ना कॉलेज खोलने वाले हैं, ना अस्पताल खोलने वाले हैं, ना सड़क बनाने वाले हैं। जो कुछ करना हमें करना है, वो नहीं आएंगे वहाँ से। ये राजस्थान में जाहिर है कि आपने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं स्कीमों के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के, और उसकी चर्चा बहुत है। मैंने राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री को इतना चर्चित, हर जगह मौजूद, इसके पहले नहीं देखा। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन के मामले में जनरली कमज़ोर रही है, यहाँ आपने बड़ा जोर लगाया है। एक आलोचना जो है वो ये है कि मदद करना, सोशल वेलफेयर स्कीम एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्री बीज या रेवड़ी देना एक अलग चीज़ है। ऐसे में सरकारी खजाने पर दबाव बनता है, घाटा बढ़ता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे आपके हाथ में कम हो जाते हैं। ये खतरा है, वास्तविक खतरा है, और इसको एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, गैर जिम्मेदारी भी है। आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? देखिए, ये बातों का ख्याल रख के फैसले होते हैं। अगर मान लीजिए कर्जे बढ़ रहे हैं, कर्जा तो हर राज्य सरकार लेती है, केंद्र भी लेती है। जब 14 में सरकार बनी थी NDA की, तो इनके ऊपर 55,000 करोड़ के कर्जे थे। आज 1,55,000 करोड़ कर्जे हैं भारत सरकार पर। बिना भारत सरकार की अनुमति से हम लोग 1 लाख रुपये लोन नहीं ले सकते, कर्जा नहीं ले सकते। इसका मतलब हमारे पैरामीटर फिजिकल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, या जो FRBM एक्ट लगा हुआ है उसके अंतर्गत कर्जा कितना ले सकता राज्य सरकारें, उतने भारत सरकार करती है। तो आप सोच सकते हो, बगैर उनकी परमिशन कर्जा ले नहीं सकते, तो कर्जा मिलने की जो छूट मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत कर्जे लिए जा रहे हैं और ये मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। तो ये चिंता हमें पहले होनी चाहिए। आज हम अगर ऐसी स्कीम लेके आ जाएं और कल दबाव पड़े राजस्थान सरकार के ऊपर, तो हम खुद भी नहीं चाहेंगे। आपको खुशी होगी, आज राजस्थान उत्तर भारत का नंबर 1 है आर्थिक विकास दर के अंदर। बोलिए आप, आज राजस्थान जो बड़े राज्य है देश के अंदर है, वो नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, 11.4% GDP, और 11.04% राजस्थान है, बड़े राज्यों के अंदर। तो आप ये कैसे हो सकता है? बगैर मैनेजमेंट के, बगैर वित्तीय प्रबंधन संभव नहीं हो सकता है, जो हमने करके दिखाया है। जी बिल्कुल। जैसे देश के लेवल पर चर्चा होती है कि मोदी वर्सेस हु, उस तरीके से राजस्थान में भी ये प्रश्न थोड़ा सा चला हुआ है कि गहलोत वर्सेस हु, तो सामने कौन है आपको पता है? ढूंढ रहे हैं हम लोग, ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें एक इल्जाम आप पर और है सर। वो इल्जाम ये है कि दोनों पार्टियों में एक समस्या है कि दोनों के जो सामने वाली पार्टी के विरोधी हैं उनसे दोस्ती है, सेटिंग है। प्रॉब्लम घर के अंदर है। देखिए, अभी मैं आया हूँ शिक्षक दिवस के ऊपर, बहुत सम्मेलन था बड़ा बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। मैंने वहाँ यही बात कही है, वसुंधरा जी ने जो है हमें तंग किया है। लोग कहते मिली भगत है आपस के अंदर, जबकि इतना तंग किया, हमारी सरकार बदल गई थी।
हमारी सरकार बदल गई थी पिछली बार, रिफाइनरी बंद कर दी उन्होंने भी और मोदी जी ने भी, ठीक है। 5 साल है, 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो रिफाइनरी का। विजय सोनिया गांधी, वीरेंद्र मोदी सब आ चुके थे वहाँ, शिलान्यास हो गया था। उसके बाद में बंद करने क्या तुक था? 5 साल तक हमने उनको दबाव बना रखा। चुनाव आते आते आखिर में मोदी जी को आना पड़ा वापस। तो मैंने मोदी जी को पीएमओ के अंदर मैसेज दिया या ट्वीट किया, मुझे याद नहीं भाई। मैं कहा मोदी जी आप कैसे आओगे, आप तो मंत्र पर बहुत विश्वास करते हो, मंत्र पढ़े जा चुके वहाँ पर, अब आप क्या करोगे आकर के वहाँ पर? तब नए कार्ड छपाए होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कार्य शुभारंभ अवसर पर आ रहे हैं, और कार्य शुभारंभ अवसर किया। अब वो रिफाइनरी बन रही, मैं जा कहता हूँ रेगुलर अगले साल दिसंबर तक रिफाइनरी बन जाएगी। जो अब उसकी कीमत जो थी 38,000 करोड़ की, वो 72,000 करोड़ की हो गई है। तो वसुंधरा जी के वक्त में ऐसे कई फैसले हुए हैं जिसके कारण से हमें बहुत नुकसान हुआ, राजस्थान को नुकसान हुआ। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर, और तो और आप देखिएगा बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर तूफान आया था, लोग बह गए थे पानी के अंदर, अनाथ बच्चों में नौकरी दी थी, आते ही वो स्कीम बंद कर दी, 15-20 बच्चों को नौकरी लगी थी, उनको ख़त्म कर दिया। मेरे पास लंबी लिस्ट है क्या क्या काम उन्होंने बंद किए उस वक्त में, आने के बाद में वो नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं कर रहा हूँ। वसुंधरा जी का जो ERCP का प्रोजेक्ट इनका था, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की वसुंधरा जी ने प्राइम मिनिस्टर से। उनका अभी भी यही कहना है कि ERCP पे और पेयजल की समस्या के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो उल्टी बात कर रहे हैं। ERCP की योजना इतनी शानदार योजना, 13 जिले की योजना है, उसमें जयपुर भी आता। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी खुद ने जयपुर में, अजमेर की 2 आम सभाओं में 13 जिलों में नाम लिए उन्होंने, जयपुर अलवर सहित, करौली, धौलपुर, भरतपुर सब है उसके अंदर, दौसा भी है, माधोपुर भी है, टोंक भी है, सब जिले हैं। और कहा मैं खुद इसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखूँगा। इतना हिंट बहुत होता है। आज मैं उनसे पूछ रहा हूँ, और मंत्री जी हमारे राजस्थान के हैं, दुर्भाग्य से मंत्री जी का इतना बड़ा पद है, वो जल संसाधन मंत्री किसे कहते हैं, कैबिनेट मंत्री है, उनको एहसास ही नहीं कि इतना बड़ा मंत्री पद लेके बैठा हूँ। अगर एहसास होता तो जाके PM से कहते, 25 MP राजस्थान दिए उनको, 1 साल कहते साहब 1 योजना, 16 योजनाएं चल रही राजस्थान देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजनाएं। कम से कम मंत्री जी राजस्थान के हैं, मैं खुद मंत्री हूँ, राजस्थान का हूँ MP, आप इस योजना को भी बनवा दीजिए, 17 योजना क्यों नहीं बनवा रहे, पा रहे हैं। आज वो हम तो कर रहे हैं काम, लगभग 15,000 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें टाइम लगेगा। राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है तो टाइम बाउंड पूरी हो सकती है वो, और सबको फायदा मिलता है, इरीगेशन के अंदर भी और पानी पीने के अंदर भी। तो ये तमाम फेलियर्स थे। हम उनकी योजना को बंद नहीं करते, कभी हमारी योजना को उन्होंने बंद करते हैं। तो मेरी बहुत कहाँ बताओ जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब समय की मर्यादा को देखते हुए 1-2 चीज़ें और मैं जानना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि वसुंधरा जी ने तंग किया या जो भी, तो जब कोई दूसरी सरकार आती है तो पिछली सरकार को भी तंग करती है। आपके बारे में लोग एक बात और कहते हैं कि आपने वसुंधरा को तंग किया ही नहीं इस बार, और बीजेपी के 4 MLA गायब रहे। देखिए बात सुनिए, कुछ नहीं है, अच्छी बात नहीं। सरकार गिराने की जब है, देखिए देश में, मैं क्यों कहता हूँ डेमोक्रेसी को खतरा है, क्यों कहता हूँ, पहली बार देखिए इस देश के अंदर चुनी सरकारों को गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान का अटेम्प्ट कर लिया। अब राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाए। अमित शाह जी, उनकी जो भी शागिर्द थे उनके, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उसमें आता है, शेखावत का नाम जो मंत्री केंद्रीय है राजस्थान का, उसका नाम भी आता है, और कई लोग होंगे। वो गिरा नहीं पाए सरकार को, उनको मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर उनके दिल में आग लगी हुई है कि यार ये कैसे हो सकता है, 5 साल सरकार चले इन लोगों ने, इसलिए राजस्थान को टारगेट करके वो कैंपेन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये सवाल मेरे मन में था नहीं सर, लेकिन अब आपने जिक्र किया है। ये जो कहा आपने कि सरकार जहां ये जीतती है बीजेपी, वहां तो मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह जरूर बनाते हैं, जहां हारती है वहां जरूर बनाते हैं, मतलब वहां तो पक्का ही बनाते हैं, जहां हार जाते हैं।
यहां पहली बार हुआ कि राजस्थान में ये प्लान बीजेपी का फेल हो गया। इसका रिटेलिएशन तो होगा, आपसे इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि आपने इनकी योजना फ्लॉप कर दी। उनको मालूम होना चाहिए कि पाला किसे पड़ रहा है। बहुत सारे लोग चौंके हुए हैं कि आपका इतना शांत, सौम्य, मृदु स्वभाव, ये जो आपने कहा कि पाला किससे पड़ा है, ये एग्रेशन कहां से आता है? दिल से आता है। जब आप सच्चाई पे हो, सच्चाई पे जो जिंदगी, कोई व्यक्ति जिंदगी में सच्चाई पे चलता है ना, तो एग्रेशन भी आता है और सब कुछ संभव होता है कामयाब होना, मेरा मानना। अब आप चूंकि चुनाव की तैयारी में हैं, तो चुनाव की अच्छी तैयारी का टेस्ट एक बड़ा सिंपल सा होता है। क्या सारी सीटों पर कैंडिडेट के नाम फाइनल हो गए? आपने उनको बता दिया जाओ काम करो, जीत के आना है। इससे पता लगेगा कि आप कितना मजबूत मुकाबला करने वाले हैं बीजेपी का। तैयारी पूरी है हमारी, प्लान बे में सब आगे बात बढ़ेगी, फैसले होंगे, और इस बार लगता है जनता का मूड सरकार रिपीट करने का। मैंने अनुभव किया केरला के अंदर, मैं केरला में गया था, वहाँ मैं प्रभारी था। एक खाली कोरोना को लेकर के हमने कोरोना का जो इंतजाम किया राजस्थान में, हमारा भीलवाड़ा मॉडल देश में दुनिया के अंदर WHO तक ने तारीफ करी उस मॉडल की, और लगभग भीलवाड़ा मॉडल जो था उसी को अडॉप्ट किया पूरे देश ने भी, दुनिया ने के अंदर भी, क्योंकि पहले घटना वही हुई थी मरने वालों की, और जो वहाँ के प्रशासनिक लोगों ने हम लोग के डायरेक्शन पे जो जो कदम उठाए वो मॉडल बन गया अपना आप में। और शानदार ने मैनेजमेंट किया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर, तो वास्तव में जनता ने साथ दिया हमारा, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी कोई कमी नहीं रखी। और मैंने खुद ने ढूंढवाया लोगों को, क्योंकि ठेले वाले, रेडी वाले तो बंद हो गए, जब लॉकडाउन हो गया सब घरों में बैठे तो उनका सामान कौन खरीदे। 23-32 लाख लोगों को मैंने ढूंढवाया जो बहुत गरीब थे या रहन बहन सोते थे। उन सबको मैंने 5 बार बैंक के खाते खुलवा के 5 बार मैंने DBT करी 5,500 रुपये की, जिससे कि वो आराम से टाइम निकाल सके। इतना मन माइनॉरिटी ध्यान रखा। ऑक्सीजन की व्यवस्था मैंने करी, लड़ी केंद्र से हमने 3 मंत्री हमारे गए, मैंने खुद ने प्रधानमंत्री से बातचीत करी, अमित शाह जी से बात करी, पर ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी हम लोगों ने। तो मैं अभी जब केरला गया तो केरला में लोगों ने कहा इस बार सरकार रिपीट होगी। आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ 30 साल से सरकार रिपीट नहीं हो रही है, वहाँ आज़ादी के बाद में हमेशा सरकार रिपीट नहीं होती है। आज़ादी के बाद से हमेशा लेफ्ट फ्रंट LDF या UDF की सरकार बनती है। इस बार पब्लिक ने पहले ही कह दिया कि सरकार रिपीट होगी इस बार। हमारे यहाँ अच्छा काम किया कोरोना का, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ कोरोना के काम भी अच्छे हुए हैं, हेल्थ में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, कानून बनाने के अंदर हमारे काम तो अद्भुत हैं देश के अंदर। हमारे कामों को देख के तो अन्य राज्य सरकारें अगले मैनिफेस्टो में लिख रही उन कामों को। ये स्थिति बन गई देश के अंदर। चर्चा में राजस्थान पहली बार आया देश के अंदर। मैंने कहा आपको ये पहली बार आया राजस्थान चर्चा में आ गया भाई, ये सब स्कीमें बनी। अभी ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं हमारे वहाँ, लास्ट में आप सोचिएगा पिछली बार 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर। इस बार 60 लाख लगभग 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। दादा पोते साथ खेल रहे हैं, कोई एज का बाहर नहीं है। माहौल ऐसा बदल रहा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे टैलेंटेड लोगों को ढूंढें, आगे बढ़ाएं, जैसे ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में हम भी आगे बढ़ें। तो ये हमारा जो हर फैसला है वो जनता लाइक कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं इस बार सरकार रिपीट होगी, ये मेरा मन कहता है। अब आप चुनाव में उतर रहे हैं और संभवतः जैसा आप कह रहे हैं कि राजस्थान में ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी इस बार जनता बदल देगी, इसके लिए हम आपके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और फिर आपसे आगे चर्चा होती रहेगी। हमारे लिए समय निकालते रहिएगा NDTV राजस्थान के लिए, यही प्रार्थना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया।